All right, so let's start with next question. Question number 27. Two uniform wires of same material are vibrating under the same tension. मतलब tension constant बोला है. Tension is constant. If the first overtone of the first wire is equal to second overtone of the second wire and radius of first wire, the first overtone of first wire is equal to second overtone of second wire. Second overtone of second wire. तो F2 dash बोलता हूँ मैं. So dash represents second wire. Okay. Unprimed is first wire and dash represents second wire. Okay. And radius of the first wire is twice the radius of second. Radius of first wire is twice the radius of second. ऐसा बोल सकते हो. You can say R equal to 2 times of R dash. ऐसा बोल सकते हो. Then the ratio of length of the first wire to that of second. So length of first wire to that of second आपको पूछा है. This is what you have been asked. So सबसे पहले एक चीज समझ लेना कि यहाँ पे when they're talking about frequencies, okay, तो given information में radius का information दिया है, radius of wire का information दिया है. So as you remember, frequency is 1/2L root of T by M, where M is mass per unit length. अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बना के दिया था 1/2L root of mass per unit length M by L, और this can be further modified like last session में हमने ये किया है mass is volume into density by length. By length जो है मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ. I'll send it here over here. Okay, this is important step क्योंकि ultimately हम लोगों को radius के term में लाना है. तो frequency is equal to 1/2L root of TL upon volume. Volume is area into length. Length cancel. So this is equal to 1/2L. Tension upon area is pi R square rho. So F equal to 1/2L R root of T by pi rho. अब according to the given question, tension constant है, rho constant है क्योंकि same material बोला है. Same material का मतलब होता है rho भी constant होगा, density will be constant. So density constant, tension constant. So you can say that F is inversely proportional to length into R. And obviously, you should know कि overtone कैसे लिखते हैं हम लोग. आपको याद होगा, for a stretched string, first overtone is 2n, second overtone is 3n, है ना? So it is in general you can write first overtone is 2n, मतलब 2 into fundamental frequency. मतलब अगर आपको याद होगा हमने लिखा था p plus 1 times of n. This was general formula for pth overtone, right? So अब according to the question, first overtone is equal to second overtone of second wire. First overtone is 2 times of fundamental frequency n of first wire. Second overtone is 3 times of fundamental frequency of second wire n dash. So 2 times of fundamental frequency क्या है यहाँ पे 1/2LR root of T by pi rho equal to 3 times of fundamental 1/2L dash R dash under root of T by pi rho. Okay, this step is important, otherwise आंसर नहीं आएगा. तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया. So you have 2/LR equal to 3/L dash R dash. But as you know, हमको फाइंड करना है L/L dash. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2/3. This will be R dash by R or L/L dash. But R dash by R is 1/2. तो यह आ जाएगा 2/3 1/2 L/L dash 2 cancel. Therefore you will have length of first wire to that of second wire as 1/3. Option number A. So this is how you are supposed to solve. Question बहुत easy था. सिर्फ आपको
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखते आना चाहिए, एंड वंस यू कैन डू दैट देन इट इज इजी. ओके, सो दिस इज हाउ यू वर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सिंपल. तो याद रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये स्ट्रिंग के केस में all harmonics are present, मतलब first order is 2 and second order is 3 and so on and so forth. That's it. Next question. In sonometer experiment, the string of length L under tension vibrates in second overtone between two bridges. The amplitude of vibration is maximum at. Very good question. आपको याद होगा सोनोमीटर में क्या होता है. You have a sonometer box. आपके पास एक सोनोमीटर बॉक्स होता है. देन यू हैव टू नाइफ्स ब्रिजेस, जिसको आप बोलते हो. यू हैव टू ब्रिजेस ओवर हियर. यू हैव टू ब्रिजेस. जस्ट अ मिनट. सो यू हैव टू ब्रिजेस मोर और लेस लाइक दिस. देन यू हैव यहाँ पे एक हुक है जिस पे आपने वायर को टाई किया है. फिर वो जो वायर है, आप वायर को यहाँ से पुल करके यहाँ तक जाओगे. फिर यहाँ पे पुली होती है. यू हैव अ पुली अरेंजमेंट हियर. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि क्या होता है सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट. फिर ये पुली के ऊपर से आप वायर लेते हो लाइक दिस, एंड देन यू हैव वेट पैन हियर, राइट. तो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है बिटवीन द टू नाइव्स, बिटवीन द टू ब्रिजेस, दिस लेंथ इज L. तो ये जो लेंथ की बात हो रही है, दिस लेंथ इज L बेसिकली. ओके, ये लेंथ L है. सेकेंड ओवरटोन स्ट्रेस स्ट्रिंग के केस में मतलब 3 लूप होते हैं. इफ यू रिमेंबर, फंडामेंटल में एक ही लूप बनता है. फिर फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप बनते हैं. सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप बनते हैं. ये पता होना चाहिए. 3 लूप मतलब 1, 2, 3 and 4. 4 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स. ओके, अगर ये टोटल लेंथ L है, मान लो दिस टोटल लेंथ इज L, और 3, देखो टोटल हमको 4 नोड्स लगने वाले हैं. अगर ये टोटल लेंथ L है तो पहला नोड L/3 पे आएगा. फिर अगला नोड यहाँ पे आएगा, that is 2L/3. ओके, तो 0 L/3, 2L/3, 3L/3 मतलब L पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मार्क कि कहाँ कहाँ पे नोड्स आएंगे. तो नोड एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा नोड. मान लो one node you will find more or less over here, and one node will be here. तो 0 पे पहला नोड, फिर L/3 पे, फिर 2L/3 पे, और लास्टली 3L/3 मतलब L पे लास्ट नोड. आपको पता है 2 नोड्स के बीच में एंटी नोड होता है. तो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस. तो एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम. तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम मतलब एंटी नोड पूछा है कि एंटी नोड कहाँ कहाँ बनेगा. तो एक एंटी नोड बनेगा 0 और L/3 के बीच में. तो 0 और L/3 के बीच में मतलब L/6 पे है ना. हाफ ऑफ L/3 इज L/6 पे बनेगा. उसके बाद L/3 और 2L/3 के बीच में मतलब एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग मतलब L/2, क्योंकि L/3 और 2L/3 इसके बीच में, तो इसके बीच में L/2 ही आता है. तो L/2 पे, एंड देन नेक्स्ट विल बी फॉर्म ओवर हियर व्हिच इज 5L/6. So you have positions of antinodes as L/6, L/2 and 5L/6. तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ घुमा घुमा के पूछा है.
व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले यू शुड नो कि सेकंड ओवरटोन मींस टोटल 3 लूप्स। नंबर 1 आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 2 नोड्स कहाँ कहाँ बनेंगे ये पता होना चाहिए। नोड्स एक 0 पे बनेगा, एक L/3 पे बनेगा, एक 2L/3 पे बनेगा, एक 3L/3 मतलब L पे बनेगा। फिर एंटी नोड्स कहाँ बनते हैं, एंटी नोड्स कभी भी दो नोड्स के बीच में बनते हैं। तो 0 और L/3 के बीच में मतलब L/6 पे, L/3 और 2L/3 के बीच में मतलब L/2 पे, 2L/3 और 3L/3 के बीच में मतलब 5L/6। यहाँ पे एंटी नोड्स बनेंगे। और एंटी नोड्स होते हैं पॉइंट्स वेयर यू हैव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा क्वेश्चन था। इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the fundamental frequency of an air column in a pipe closed at one end is 100. Fundamental frequency NC for a pipe closed at one end, मैं इसको NC से डिनोट कर रहा हूँ। You should know for a pipe closed at one end, fundamental frequency is V by 4L and that is equal to 100. If the same pipe is open at both the ends, तो ऐसा है कि पहले हमारे पास एक पाइप था जो एक एंड से क्लोज था, ओके। अब वही पाइप, सेम पाइप मतलब लेंथ सेम, इट इज ओपन एट बोथ द एंड्स, ओके। द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड आर, तो आपको पता होना चाहिए दैट दिस is fundamental frequency of open pipe is V by 2L. I can write this as 2 times of V by 4L. सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दैट्स इट। तो 2 into 100 मतलब fundamental frequency is 200 and you know frequency is present in pipe open at both ends. Frequency is present in a pipe, in an open pipe better to say. कौन कौन से फ्रीक्वेंसी होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब उसमें फंडामेंटल, फिर फर्स्ट हार्मोनिक मतलब सॉरी फर्स्ट ओवरटोन 2n है ना। तो यू हैव फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, या फिर फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन इज 2n, देन यू हैव 3n, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, 4n0 एंड सो ऑन। तो n0 क्या है, 200 है, 200 into 2 कितना, 400 है, into 3 कितना, 600, 800, 1000, so on so on. So option number D. So these are the frequencies present in a pipe of which is open at both the ends. तो क्वेश्चन अच्छा था, आपको एक पाइप दिया है क्लोज एट वन एंड जिसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज एट वन एंड इज V by 4L, तो V by 4L आपको 100 मिल गया। फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड इज V by 2L, क्योंकि पाइप सेम है मतलब लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, और हमको पता है फॉर ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V by 2L, तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप मिल गया। और फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स यू हैव ऑल द हार्मोनिक्स प्रेजेंट, तो 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 ऐसा आएगा वो, ओके। So this is how you are supposed to solve this question. Next question. The equation of sound wave is y equal to 0.0015 sine of 62.4x plus 316t. Okay. Find the wavelength of this wave. So you already know कि इस equation को मैं लिख सकता हूँ, I can write this equation as y equal to sine of 316t plus 62.4x। फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ y is equal to a sine of omega t plus kx,
ओके ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करने वाले हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. ओके did I miss one question? Yes, so I'll take question number 30 later. I have missed it, so I'll add it later. Okay, so यहाँ पे directly by comparing equation 1 and 2 you will get k is equal to 62.4. and what is k? K is 2 pi by lambda, that is equal to 62.4, and they are telling you to find out wavelength. So lambda is equal to 2 pi upon 62.4, right? Then you have this equal to 2 into 3.14 upon 62.4. तो 62.4 ऐसा आपके पास आएगा, राइट? तो इट इज सिंपल, क्योंकि ये ऊपर जो है आई मीन रफली आई एम टॉकिंग अबाउट रफ, तो रफली ये 1 जा और ये 20 जा, तो ये 2 1 जा 10 जा, तो lambda equal to 1/10 which is 0.1 unit. Option number B. This is how you are supposed to solve that particular question. So easy tha. All you need to know is just standard equation and then compare the given equation with the standard equation. That's it. All right, so let's solve missing question. So question 38 was missing. Let's do it now. A progressive wave is represented by y equal to 12 sine of phi t minus 4x centimeter. तो आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है. On this wave, how far are the 2 points having phase difference of 90 degree? तो ये जो wave है, so let me draw a wave. So let me say we have a wave. And minus मतलब the wave is traveling in positive x direction. So you have a wave. अब इस wave पे 2 points है, कहीं भी ले सकते हो. You can take one point at the origin directly, A, other point somewhere over here, B ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो in fact. तो इन दोनों points में जो phase difference है that is 90 degree, and they're asking you what is the distance, how far, मतलब path difference कितना है. So they are asking you to find out path difference. Given phase difference. If you remember, phase difference को हम phi से denote करते हैं. So given phase difference phi is nothing but it is equal to 90 degree. So कैसे find करोगे? Simple thing. Okay. तो as you already know, सबसे पहले हमको equation 1 को equation 2 से compare करना पड़ेगा. A sin of omega t minus kx से compare करना पड़ेगा. Because once you do that, आपको एक बार ये मिल गया, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा k. So from equation 1 and 2, comparing 1 and 2, you have k is equal to 4. और आपको याद है हमने लिखा था phase difference phi is k times of path difference delta, k delta. Okay, therefore delta is equal to phi by k. Phi is 90 is pi by 2, 90 degrees pi by 2 radians. Okay, divided by k is 4, तो ये आ जाएगा pi by 8 सेंटीमीटर. इजी. ऑप्शन नंबर सी. बहुत सारे बुक्स में इसका सॉल्यूशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करके रखा हुआ है, but obviously we should always go for the simplest possible solution, which is this. Next question number 32. okay, तो more or less same type का क्वेश्चन है. Equation of simple harmonic progressive wave is given by A sine of 100 pi t minus 3x. Find the distance between two particles having a phase difference of, तो शायद इसीलिए मैंने छोड़ा होगा, but anyways, y is equal to A sine of omega t minus kx, equation number 2. So by comparing these two equations, you have k equal to 3, and therefore also you know what you know is अभी हमने लिखा था
phase difference is k times of part difference. Therefore, part difference is phi by k. Phi is pi by 3 by k is 3, so pi by 9 meter. Option number A. Okay. तो so far हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, व्हाट डू यू नोटिस? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओके, तो जब आप सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करते हो इस चैप्टर में, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के सारे इक्वेशंस आपको पता होना कंपलसरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम प्रीवियस सीईटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 6-7 equations of simple harmonic progressive wave. So you should know that. Next question, question 33. Two strings A and B of same material are stretched by same tension. देखो same material मतलब density constant और same tension मतलब tension constant. तो ये दोनों constant quantities है. The radius of string A is double the radius of B. Radius of A is double the radius of B. Transverse wave travels on string A with speed VA and on string B with speed VB. The ratio of VA by VB is. तो अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था just now and you have to know कि it is more or less same. अभी थोड़ा टाइम पहले हमने किया था same type of question. This one. Okay. So what I am expecting from your side is to know little bit of basics. तो बेसिक मतलब क्या? आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हो तो इन रियलिटी वेलोसिटी इज n टाइम्स ऑफ लैम्बडा. ओके, इस n लैम्बडा, फिर आप n लिखते हो v बाय लैम्बडा. ओके, और इसमें v जो होता है ना, वेलोसिटी ऑफ अ वेव ऑन अ वायर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, दैट v is under root of t by m. So that's all you need to know कि velocity of transverse wave on a stretched string is tension upon mass per unit length. तो ये आ गया under root of t upon mass per unit length. तो ये आपके पास आ गया under root of t into L by m. Good, right. लेकिन हमको रेशियो पूछा है वेलोसिटी का, इंफॉर्मेशन दिया है रेडियस का. मतलब हमको वेलोसिटी और रेडियस को रिलेट करना पड़ेगा. वी हैव टू मेक अ इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस. तो यहाँ पे तो वैसा है नहीं, तो करना पड़ेगा. तो कैसा करेंगे? डू यू रिमेम्बर फ्रॉम 11th standard you have learned something called as elasticity, and in that chapter you have also learned something called as Young's modulus. Young's modulus of elasticity, इसको elasticity of length भी बोलते हो आप, that is tensile stress, force per unit area upon tensile strain. Okay, change in length per unit original length, है ना. इसको आप basically you call this as, if I'm not wrong, longitudinal stress upon longitudinal strain, ऐसा भी बोलते हो उसको. So anyways, therefore this y is equal to force by area original length upon change in length. But in this case, जब एक वायर आप लेते हो और वायर पे एक मास लगा देते हो, तो जो टेंशन, मतलब जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू दिस लोड, मतलब ड्यू टू दिस फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो फोर्स इज इक्वल टू टेंशन. तो F इक्वल टू T, है ना. सिर्फ फोर्स क्या, टेंशन ना, टेंशन इज अ फोर्स. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अ फोर्स इन द स्ट्रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लोड अपॉन A डेल्टा L. A क्या है, पाई r स्क्वायर है. इसका मतलब what does this means? So this means that tension
into L is Young's modulus Y, pi r square delta L. This is what it means. Therefore, you can say V is equal to under root, equation number 2 or equation number 1. So from 1 and 2, यहाँ पे आप बोल सकते हो, you can safely say that V is equal to क्या था, root of TL. TL क्या आया, TL आपके पास आया Y pi r square delta L, ऐसा आपके पास आया ये, राइट, अपॉन मास. अब क्वेश्चन में बोला है सेम मटेरियल मतलब Y भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि सेम मटेरियल है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम है. स्टील के लिए 2 वायर है तो दोनों स्टील के हैं, तो यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. तो दोनों स्टील के वायर है तो यंग्स मॉड्यूलस सेम है, राइट. तो Y कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, डेल्टा L कांस्टेंट, सो सब तो कांस्टेंट है. देयरफॉर यू कैन से V इज proportional to root of r square, मतलब V is proportional to R in short. So therefore VA by VB is equal to RA by RB, but RA by RB is given here and that is equal to 2. So VA by VB equal to 2, option number C हो गया आपका क्वेश्चन खत्म. So this is how you are supposed to solve such questions. So question बहुत ही easy था. It was extremely simple question. Of course, provided आपको Young's modulus क्या होता है ये पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होगा तो you cannot solve, क्योंकि टेंशन इनटू लेंथ ये Young's modulus के टर्म में लिख के बाद में आप बोल सकते हो कि दोनों वायर सेम है इसलिए Young's modulus सेम है, so on so forth. This is how you can solve this particular question. Next question. If the end correction of an open pipe is 0.8 centimeter, then the inner radius of that pipe will be. आपको याद होना चाहिए end correction E is 0.6 times of diameter D. मैं पहले तो बता दूं कि end correction है क्या, जिसको याद नहीं है उसके लिए. What was end correction? When you have pipe, be it a pipe which is closed at one end या फिर open at both the ends, कोई फर्क नहीं पड़ता है. होता क्या है, open end पे हमेशा antinode बनता है. You have antinode always formed at open end. All right. अब बात ऐसी है कि in reality एंटीनोड ओपन एंड के थोड़ा ऊपर बनता है. सो इफ आई से लेंथ ऑफ पाइप इज दिस, ओके, बट लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज लिटिल मोर ना, तो एंटीनोड थोड़ा सा ऊपर बनता है. तो कितना ऊपर बनता है, दैट इज एंड करेक्शन. सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस is end correction, which is given by 0.6 times of diameter. This is really important. ये आपको पता होना चाहिए. अब उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ओपन पाइप है, तो ओपन पाइप है तो एंड करेक्शन जो है वो 2 टाइम्स लिया जाएगा, है ना. तो यू विल हैव टोटल एंड करेक्शन एज 2E, which is 2 into 0.6 times of diameter. Okay, so 1.2 times of diameter, right? अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो जाती है. This is a silly mistake. Okay, तो ये 2E लिख रहे हो, ये याद रखना, because sometimes E is equal to 1.2D लिख देते हैं. That is not correct. So what I am trying to tell you is, या तो E equal to 0.6D डायरेक्ट यूज करो या फिर 2E is equal to 1.2D यूज करो.
Okay, I would suggest okay, you can directly go for this. End correction is 0.6d at one end, दूसरे एंड पे भी उतना होगा, राइट? तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पे आपको टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये जो लेंथ था आपका, ये लेंथ L था पाइप का, तो टोटल लेंथ ऑफ एयर कॉलम मतलब कैपिटल L, दैट इज इक्वल टू L प्लस E, तो यहाँ पे आपको 2E लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लेकिन जब आपको इनर रेडियस पूछा है, उस केस में आपको दोनों साइड देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन जस्ट से E इज इक्वल टू 0.6, D इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो ये आ गया E इक्वल टू 1.2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एंड डायरेक्शन कितना दिया है 0.8 सेंटीमीटर, 1.2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस कितना आ गया 0.8 अपॉन 1.2, तो ये आ गया आपका बेसिकली 2/3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने गलती से टोटल एंड करेक्शन 2 टाइम्स ऑफ 0.6 डी ऐसा लिख दिया होता गलती से, तो ये आ जाता आपका 0.6 इंटू 2r, तो ये आ जाता आपके पास 2.4r। तो आप लिख देते r इक्वल टू E अपॉन 2.4, E आपको 0.8 दिया है अपॉन 2.4, तो ये आप आ जाएगा 1/3, तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दोगे आप। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 2e करना पड़ेगा, तो 2e करोगे तो वापस 2/3 आपको मिल जाएगा। तो यू हैव टू पे अटेंशन, कहाँ पे क्या करना है ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2/3। नेक्स्ट 35th, wire having tension 225 Newton produces 6 beats per second when it is tuned with a fork. Okay, when tension changes to 256, it is tuned with the same fork. The number of beats remain unchanged. The frequency of the fork will be. देखो पर्टिकुलरली ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास एक वायर है जिसका टेंशन 225 न्यूटन है। जब इसको हमने रेजोनेट मतलब इसको जब हमने वाइब्रेट करवाया विथ ट्यूनिंग फोर्क, रेजोनेंस प्रोड्यूस हुआ बोल सकते हो। एंड देन यू हैव 6 बीट्स, मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क इज 6, क्योंकि बीट्स क्या होता है, इट इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 दिया है। फिर हमने स्ट्रिंग के टेंशन को 256 कर दिया, ओके, और सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज कर रहे हैं, और अभी भी नंबर ऑफ बीट 6 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क क्या होगा। तो ऐसे केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, let us say it is, we know that it is 1/2 L root of P by M, हमको पता है। okay, then let's say X be the frequency of tuning fork, frequency of tuning fork, तो N जो है ये है frequency of string, fundamental frequency of vibrating string, fundamental frequency of string, good। X is tuning fork का frequency। तो जब बेट्स की बात होती है तो you have difference in frequency, मतलब n minus x equal to 6 और x minus n equal to 6, क्योंकि हमको पता नहीं ज्यादा कौन सा, we don't know, you don't know what is greater, है ना। अब इसमें दो केसेस हैं, so the thing is, या तो आप ऐसा लिखो या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, you can say x minus n equal to plus minus 6, एक ही बात है, because if I write x minus n equal to plus 6, okay,
or if I write x minus n equal to -6, so this is the same thing, one and the same thing. सिर्फ ये नेगेटिव मैं यहाँ पे लाऊंगा, तो I can write -x minus n equal to 6, मतलब n minus x equal to 6, तो n minus x equal to 6 या फिर x minus n equal to 6, the same thing. So more or less you have to understand कि ये एक ही बात है, so it's just a way of writing. तो अभी तक क्या लिया हमने, एक स्ट्रिंग था, एक ट्यूनिंग फोर्क था, दोनों को वाइब्रेट करवा रहे हैं, 6 बिट्स मिल रहे हैं। पहले केस में टेंशन 225 था, दूसरे केस में टेंशन 256 था। नंबर ऑफ बीट्स चेंज नहीं हुए, ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि टेंशन चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज होगा वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाट यू शुड नो। गुड, तो दो हमारे पास केसेस है। नाउ ऑब्वियसली आई कैन से n1 is equal to 1 upon 2l root of t1 by m and n2 is equal to 1 upon 2l root of t2 by m, क्योंकि टेंशन चेंज हो रहा है ऐसे। दिस इज व्हाट यू शुड नो। therefore you can write n1 equal to 1 upon 2l root of 225 by m and n2 is equal to 1 upon 2l root of 256 by m. ओके, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, मैं n1 by n2 ले लेता हूं, तो 1 by 2l 1 by 2l कैंसल, 1 by root m कैंसल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 225 by 256. दिस इज रूट ऑफ 225 is 15 and 256 is 16. तो n1 by n2 आपको मिल गया 15 by 16, मतलब n2 मिल गया आपको 16 by 15 टाइम्स ऑफ n1, राइट। तो हमको रिलेशन बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग मिल गया। सो यू हैव रिलेशन बिटवीन व्हेन द टेंशन वाज 256 मतलब 225 and when the tension was 256, you have this relation. अब you can take both the cases. तो आप ये n2 की वैल्यू इन दोनों में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करना पड़ेगा आपको, एंड यू हैव टू सॉल्व। ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस टू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू दिस एज असाइनमेंट, क्योंकि आई वांट यू टू ट्राई इट आउट आफ्टर दिस स्टेप। तो बेसिक है कि इतना मुझे बताना था, मैंने बता दिया। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, यू दैट्स असाइनमेंट फॉर यू। तो x की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 186 हर्ट्ज आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा आना चाहिए। कैसा करना है वो आप देखो, बिकॉज इट्स सिंपल प्लस माइनस थिंग, बट यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है, व्हिच आई वांट यू टू वर्क आउट बाय योरसेल्फ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन फ्यूचर। क्या फाइंड करना था? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। x क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये एक इक्वेशन है, हमारे पास ये एक इक्वेशन है, हमारे पास ये एक कंडीशन है। बस इन तीन कंडीशन का यूज करके आपको x फाइंड करना है, एंड दैट इज 186। तो यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, गुड, आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस। ओके, सिर्फ ये सोचना है कि n2 के लिए n minus x यूज होगा या x minus n यूज होगा, that's it. Okay, so that's all you are supposed to do, nothing else. तो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और well, by the way, while solving that question you have to look here, what does this mean? n2 is greater than n1, क्योंकि 16 by 15 greater than 1 है, मतलब n2 is greater than n1। ये आपको यहां से समझ के ही कंडीशंस इन दोनों में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड देन यू कैन डू दिस बाय योरसेल्फ। 36th, when open pipe is closed from one end, then third overtone of closed pipe is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of open pipe. The fundamental frequency of open pipe will be. अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। When open pipe is closed from one end, third overtone of closed pipe, the third overtone of closed pipe
is higher in frequency by 150 hertz. Higher in frequency मतलब plus 150 hertz. Lower बोलते तो minus, higher बोला तो plus. Is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of open pipe. ओके तो क्वेश्चन में क्या बोला है ये समझना बहुत जरूरी है. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप is equal to second overtone of open pipe plus 150. This is what they are trying to tell you. Fundamental frequency of open pipe will be. So do you remember? Of course, यहाँ पे length same है क्योंकि open pipe को बाद में close किया था. तो you should know that, but fundamental frequency of closed pipe is V by 4L, and fundamental frequency of open pipe is V by 2L. Okay, therefore you can say this is equal to 1 by 2 V by 2L. So this is equal to 1 by 2 fundamental frequency of open pipe. Fundamental frequency of open pipe. Therefore, fundamental frequency of closed pipe is half of open pipe. Okay, ये बताना चाहिए. Therefore, equation number 1, equation number 2 से आपको मिलेगा. Therefore, from equation number 1 and 2, you will have, what you will have is 3 times of n0 by 2 equal to 2 times of n0 plus 150. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि I mean बाकी books they have done it बहुत lengthy way से, but if you can do it directly then I think there is no need to go for that lengthy way. तो ये आपको मिलेगा 3n0 by 2 minus 2n0 equal to 150. 3 by 2 minus 2 है ना. तो this is something where you have to be careful. तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो you have to be careful little bit over here because ये आ जाएगा minus and this is what not what we want. Okay, मैं बताता हूँ कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है, so you have to just be little careful. तो minus n0 by 2 equal to 150. तो n0 is minus 300. तो 300 hertz तो है आपके पास, which is correct. But कहाँ गलती हुई वो भी देखना पड़ेगा. You have to see where did it go wrong. तो बात ऐसी है that हमने स्टार्टिंग से एक चीज गलत लिखी. You have to have proper attention here. नहीं तो आंसर गलत होगा. थर्ड ओवरटोन है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप. इफ यू रिमेंबर, अगर क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एनसी है तो एनसी के बाद यू विल हैव 3nc देन 5nc देन 7nc. क्योंकि क्लोज्ड पाइप के केस में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. तो ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन, ये थर्ड ओवरटोन. तो थर्ड ओवरटोन इज 7 times of NC. दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. पहली गलती यहाँ पे थी है ना. सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. ओपन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. फंडामेंटल, फिर ये. तो ये फंडामेंटल है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकेंड ओवरटोन है. तो सेकेंड ओवरटोन. ओके, देन what they are telling you is third overtone of closed pipe is greater than 150 by then second overtone of open pipe. So this is what they are trying to tell you. सबसे पहले यहाँ पे जो गलती होती है उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. Now you can say, but
NC is V by 4L, which is 1 by 2 V by 2L, which is open pipe ka fundamental frequency, because this is open pipe ka fundamental frequency by 2. Therefore, now you can say from equation 1 and 2. So from equation 1 and 2, now you can say 7 NC is N0 by 2 equal to 3 N0 plus 150. So now you can say 7 by 2 N0 minus 3 N0 equal to 150. तो ये आपका जाएगा 7 N0, मतलब 3.5 है, 7 by 2 minus 3 कर रहे हो, मतलब इसका N0 by 2 equal to 150 आ जाएगा, तो N0 equal to 300 Hz आ जाएगा. तो दिस इज नॉर्मल मिस्टेक जो मैंने लास्ट टाइम बताया है, ऐसा होता है नॉर्मली. तो इसलिए पहले क्लोज पाइप के ओवरटोन अलग से लिख लो, ओपन का अलग से लिख लो, फिर इक्वेशन बनाओ, अदरवाइज यू विल गो रॉन्ग हियर. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, दिस इज करेक्ट. ऑलराइट, so far so good. We have done sufficient questions on this chapter. So I am leaving certain important examples, few important examples as assignment, because only teacher teaching you is not sufficient. You have to do some questions by yourself. As you remember, हम 40 questions हर एक चैप्टर पे कर रहे थे, तो 36 हुए हैं. तो 40 का मार्क कंप्लीट करने के लिए आई हैव टू गिव यू सम असाइनमेंट्स. तो 4 क्वेश्चन, ये तो थियरी है, दिस इज तो हमने क्लास में डिराइव की है थियरी क्लासेस में. दिस इज सिंपल, दिस इज एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, ये तो आपका थियरी से ही आता है. दिस इज प्रीटी सिंपल थिंग. So I should tell you option number C आता है इसका, because this is theory question. Okay, so ये assignment में जाएगा ही नहीं, because we have already done this. Good. So 37, 38, 39 will be assignment. So we are going to stop here.